G geometric progression, right? We know that if we have to find the nth term of the series, this will be a into r to the power n minus 1, right? Where a is the first term, r is the common ratio, right? N is the number of terms, right? First formula. Second formula, when we have to write down the sum up to n terms, that will be a r to the power n minus 1 upon r minus 1, or this you can write a 1 minus r to the power n upon 1 minus r, right? This is sum up to n terms for GP, right? If you have to find sum up to infinity, in this case, r, the value of r is must lie between -1 to 1, and the series is something like this: a plus ar square up to infinity. This will be a upon 1 minus r. This is sum up to infinite term, right? ये तीन फॉर्मूलाज हमने किए थे, right? Third one is this one, right? Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. And if you have to take three terms are in GP, terms are in GP, क्या क्या लेने थे? A by R and ER, right? If four terms we have to take AR, right? A by R, AR cube, A by R cube. This is for three term, this is for four term. फाइव टर्म के लिए भी स्टार्ट यही करने हैं, बीच में ए लिख के एंड इसको एक्सपैंड करते जाना. ओके, तो इतने फॉर्मूलाज हम लोगों ने किए थे, उसी पर हम लोगों को वर्क करने हैं, राइट? ओके एवरीवन, कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी को? राइट ना, जस्ट वी आर स्टार्टिंग. आई होप सभी के पास ये लिखा हुआ होगा, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ गया. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन सर लास्ट वन। लिख लो बेटा. आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ हम लोग को बहुत सारे काम करने हैं ना, सो प्लीज केयरफुल. डन. यस सर। Product of three, right? Product of three GPs, three term of GP is 216, and their T term of GP now. yes, and the sum is 19. Find the number. फाइंड द नंबर मतलब सर तीनों GP फाइंड करने बेटा, क्या क्या होंगे तीनों GP?
सर ये फर्स्ट थ्री टर्म्स है, हाँ, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स है या? तो एनी थ्री टर्म्स बेटा, एनी थ्री टर्म्स. ओके सर। Yes, sir. Go on. Very good. सर आर की दो वैल्यू आएगी ना? After. सर तो हमें दो अलग अलग आंसर आएंगे ना सारे टर्म्स के लिए? Very good. Do answer. You can write down in chat. तो दोनों ऑर्डर लिख दिए. Very good. कि माया, ये मैंने लिखा है बेटा, ये पहले कभी लिखा हुआ होगा आपके पास. हाँ, Answer. done. Very good. Direct question on this, right? So this is A by R, A R. मैंने ये तीन टर्म assume कर लिए, these are in G, right? ये तीन टर्म assume कर लिए. अगर मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, right? The product of this A by R into A into AR. R cancel out. This is 216. A cube is equal to 216. So A is equal to 6. Right? तो A की वैल्यू आ गई. Right? अब A की वैल्यू मेरे पास ये आ गई and sum is given as 19. So A by R plus A plus AR is 19. Or we can write this as R plus 1 by R plus 1 is equal to 19 by 6. 1 cancelling out. R plus 1 by R is equal to 19 by 6 minus 1. 19 minus 1, 13 by 6. So this will be R square plus 1 by R is equal to 13 by 6. Or we can rewrite this as R square plus 1 into 6 is equal to 13 R. 6R square minus 13R plus 6 is equal to 0. Right? Can you factor this? 6R square minus, right, 9R minus 4R plus 6 is equal to 0. This 3R common out, 2R minus 3 minus 2. Common out, 2R minus 3 is equal to 0. So 3R minus 2 into 2R minus 3 is equal to 0. So R is either 2 by 3 or 3 by 2. First note down this. I hope everyone is getting this. यस सर. Yes, sir. Very good. Very good, everyone. Done. Just note down. यस सर. Tushar, okay.
एवरीवन, इज दिस ओके? क्लियर है ना? जील, Yes, sir. दिस ओके? अमोक, Yes, sir. विजय, इट्स ओके? हाँ सर. सबने नोट कर लिया है? किसी का बचा? Yes, sir. किसी के बचे हुए नहीं है? राइट, आर की वैल्यू यहाँ तक आ गई, राइट? अब आर की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, राइट, दोनों में से किसी भी एक में आर की वैल्यू पुट कर दूं, ए मेरे पास 6 गिवन है, आर की वैल्यू मेरे पास है ए इज 6, r is either 2 by 3 or r is 3 by, right? So what we have to write down? A by r, a by r, 6 by 2 by 3. This is 6 and 6 into r is 2 by, right? So this is 964, one of the GP. And if I'll take r as the reverse one, then what I'm getting? 6 into 2 by 3, 6 into 3 by 2. 469. Okay, how many of you got this answer? Please write down yes in chat. Very good. Wow. Very good. अरे वाह, अमोक, ओके बेटा? Yes, sir. सर मेरा लास्ट में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है. हिमाया, दिस इज ओके, राइट? नेक्स्ट पे जा रहा हूँ ना, ध्यान से. TPA term of GP is X, TQA term of GP is Y, TRA term is Z, right? Find value of x to the power q minus r into y to the power r minus p. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपको मिलेगा. ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. टेक योर टाइम. मेरी ज्योमेट्रिक सीरीज में, जो जीपी में बेटा, जीपी में सर. ज्योमेट्रिकल सीरीज की बात हो. सर तीनों एक ही जीपी का है. यस, सेम जीपी. डन. सर 2 मिनट.
सर 2 मिनट। केवल कैलकुलेशन है ना, एकदम पेशेंस हाँ कैलकुलेशन, दैट्स इट। एंड इस तरह के कैलकुलेशन को आपको यूज टू होना है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे। सर आंसर भेज दिया। वेरी गुड, वेरी गुड पुरंजय एंड जयेश। ठीक है, ठीक है, टेक योर टाइम। टाइम ले सभी लोग। क्या हुआ सर? आंसर्स आंसर्स देख रहा था किसने किसने भेजा है। सर 2 मिनट, एक मिस्टेक आइडेंटिफाई। हम्म। मैं स्टार्ट करूं? सर 2 मिनट। ओके। 2 मिनट। यस सर। आंसर सर इसमें सर ऐसे पावर्स कॉमन बनवाना रहता है ना। बस वही मतलब ऐसे एक्स वाई जेड तीनों के अलग अलग रेशियोज लेकर उन्हें इनको इन तीनों के पावर में डिसोशिएट कर दिया। सर मैंने आपको आंसर भेजा। अरे वाह जेल, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। वेरी गुड पुरंजय। सर मल्टीप्लाई करने की जगह ऐड कर दिया गलती से। ये सब गलती नहीं है, अब बड़े हो गए अब हम लोग। सॉरी सर। स्टार्ट कर लें? यस सर। सो राइट, देखना हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना बेसिक तरीका हमें रखना है। बेसिक तरीका मीन्स टीपी। टीपी को लिखूंगा AR टू द पावर P-1, उसकी वैल्यू होती है एक्स गिवन है, राइट।
टी क्यू की वैल्यू हो गई ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन, इसकी वैल्यू वाई गिवन है। टी आर इज ए कैपिटल आर टू द पावर आर माइनस वन, इसकी वैल्यू जीरो। ये है, हमने कोई नया काम नहीं किया, जो भी गिवन है उसी को अच्छे से लिख दिया। अब मेरे को दिख रहा है कि x का पावर है q माइनस आर, तो मेरे को x वाले में दोनों तरफ पावर q माइनस आर लेना है, y वाले में मेरे को r माइनस पी लेना है, और z वाले में मेरे को अकॉर्डिंगली p माइनस क्यू देना है। राइट, देखते हैं। हर एक के पावर अगर मैं दूं, तो पावर अगर मैं दे रहा हूं फर्स्ट वाले में, मुझे क्या देना था, q माइनस आर। q माइनस आर, ये पूरे में भी पावर जाएगा q माइनस आर। राइट, सेकंड में r माइनस पी, इस पूरे में पावर जाएगा r माइनस पी। राइट, ये वाले में जेड P माइनस क्यू। p माइनस क्यू, इसमें भी जाएगा p माइनस क्यू। इज दिस ओके? अब अगर मैं ये तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये भी मल्टीप्लाई होंगे लेफ्ट वाले, एंड जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसमें सबसे प्यारी बात क्या है कि पावर ऐड हो जाते हैं। राइट, तो a का पावर आ गया q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, प्लस r का पावर आ गया p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। राइट, इजिकल टू जो मुझे चाहिए था वो। राइट, सी। मजेदार बात क्या हुई, सब कैंसिल हो गए, मतलब यहाँ पर a का पावर जीरो हो गया, r वाले में भी सात कैंसिल हो गए। राइट, तो जो x का पावर मुझे चाहिए था q माइनस आर, y का पावर r माइनस पी, z का पावर p माइनस क्यू, इसकी वैल्यू आ गई। इज दिस ओके? सर मेरा भी है आंसर। वेरी गुड। आई होप मेरा एवरीवन भी सर। अंडरस्टैंडिंग दिस। मेरा अनुष्का, तुषार, हिमाया, ओके बेटा? कहीं पर कोई स्टेप जिसमें मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी? ठीक है, चल। मैं ना थोड़ा सा आप लोग को अनकंफर्टेबल जोन पे लाना चाह रहा हूँ ना। अनकंफर्टेबल जोन आपका जानते हो कहाँ पर है? जब आपको पावर वगैरह में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, जब सर्ट सॉल्व करने होते हैं, तब जिस स्टेज में अभी आप हो ना, आपको दिक्कत जाती है। राइट, तो ये दिक्कत तभी खत्म हो सकती है जब बार बार हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। राइट, सी, देखते हैं क्या नेक्स्ट इज। let a be the first term, right? A be the first term, b be the nth term, and capital P is the product of n terms of a GP. Then find value of p square upon ab to the power n. इसकी वैल्यू क्या? AB to the power n. ab to the power n, p square upon ab to the power n, सर B nth टर्म है। b nth term.
मैं स्टार्ट करूं? कर दो मेरे। नो सर सर, हो गया। आंसर सर हो टाइप गया। कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये होने वाला क्वेश्चन है, सिंपल है ये। सर हो गया, बस 1 मिनट। वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया सर, अभी आंसर भेजा। किसके टर्म्स में आते हैं? हाँ, कांस्टेंट आएगा बेटा। कांस्टेंट पे आएगा, नंबर्स। सर बस 1 मिनट। सर आंसर भेज दीजिए। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। मैं स्टार्ट करूं? यस, यस सर। Let A be the first term, right? First term, A be the first term and B be the last term. A. Then second term होगा AR square, and last term होगा AR to the power n minus 1. And this is given as B, right? And what they are saying, सर बी तो आखिरी टर्म है ना। B आखिरी टर्म है, तो इसी को मैंने B लिख दिया, right? ये पूरा गिवन है, right? What we required, मुझे क्या चाहिए? A1, A2, A3 अप टू AN, यही चाहिए। इसकी वैल्यू गिवन है P, यही था ना? P भी यस सर। सर बस इतना करना है ना कि लास्ट टर्म को n पावर तक रेस कर दो। बता रहा हूँ। तो A1 का मतलब हो गया A, A2 का मतलब हो गया AR, A3 का मतलब हो गया AR स्क्वायर, लास्ट टर्म हो गया AR टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू P। इज दिस ओके? सर अब अगर पी स्क्वायर कर दोगे और इसी को उल्टा कर दोगे तो फिर वो ना प्रोडक्ट। अगर मैं इसी को, राइट, ये वाली जो हमारे पास है, राइट, वेरी गुड, राइट, कि इस ये जो हमारे पास गिवन है इसी को रिवर्स करके लिख देता हूँ, करते करते। मल्टीप्लाई करके सेम हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या देगा? ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 1। इसमें भी अगर आप ध्यान दो तो ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 1, करते करते ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई? पी स्क्वायर। एंड फर्स्ट टर्म मेरा क्या गिवन था? ए, लास्ट टर्म मेरा गिवन था बी। तो ए बी क्या है? ए इंटू ए आर टू द पावर एन माइनस 1, मतलब ए स्क्वायर आर टू, ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस। ये ए बी है, तो मतलब हर और एक ए बी टाइम्स एन टर्म। ए बी एन टाइम्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये हो गया ए बी ए बी एन इज पी स्क्वायर। पी स्क्वायर, यही प्रूव करना था। दिस इज फर्स्ट मेथड, और भी दिखाता हूँ, पहले इसे लिख लो प्लीज। इज दिस ओके? ये समझ में आया? ये सबको क्लियर है? जील, जयेश, अनुष्का, अभिजय, तुषार, यस सर। ठीक है ना बेटा?
सर इसका अदर मेथड भी है। अभी बता दो, पहले इसे लिख लो। जिसके लिए क्वेश्चन बना है वो दिखाता हूँ आपको ना, जिस कंसेप्ट के लिए ये क्वेश्चन बना है ना वो अभी दिखाता हूँ। तो आंसर 1 ही आएगा ना? 1 आया बेटा, दोनों को डिवाइड करने पर 1 ही आएगा ना, नंबर हाँ। सेम है। डन। यस सर। यस सर। सी व्हाट आई एम सेइंग ना, एक बड़ा प्यारा सा काम हो सकता है क्या, T1 राइट, फर्स्ट टर्म है T1, T2 सेकंड टर्म है AR, T3 थर्ड टर्म है AR स्क्वायर, Tn-1 टर्म होगा AR⁴n-2, Tn होगा AR⁴n-1। इज दिस ओके राइट? Yes. अगर मैं T1 इंटू Tn कर दूं तो वो आएगा A²R⁴n-1। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो है, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म जो होगा, ध्यान दो वो सेम आ रहा है। थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म जो होगा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ राइट, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, तो मेरे पास जो गिवन था A1 A2 A3 अप टू An राइट, ये P था, ठीक है ना, A1 A2 A3 अप टू An ये P था। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास A1 An जो है वो सेम देगा AB, A2 An-1 है वो भी देगा AB, A3 An-2 है वो भी देगा AB। तो हर एक टर्म ये जो है AB देता जाएगा और ये हो जाएगा हाफ ऑफ, एक हाफ टाइम्स हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो गिवन है ये आ गया AB⁴n/2 इज इक्वल टू P, या AB⁴n इज इक्वल टू P²। इज दिस ओके? सर n/2 क्यों होगा? आधे टर्म हो गए ना बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई हुआ, ओ सेकंड लास्ट मल्टीप्लाई हुआ, तो आधे टर्म हो गए। हाँ, आपने तो आधा तो खा लिया ना। सर ये बिना उसके करके है। हाँ सर ये बिना लंबा मेथड नहीं है, बहुत छोटा। हाँ, ये थोड़ा सा सिंपल। थर्ड मेथड दिखाऊं क्या? ठीक है, हाँ सर, थर्ड मेथड भी। थर्ड मेथड भी दिखाऊं तो भी दिखाता हूँ, इसे नोट कर लो प्लीज। तो आप जितना चाहोगे एक्सप्लोर करना ना उतना कर सकते हो, राइट? डन, नोट कर लिए? यस। सी इस T1 T2 T3 अप टू Tn राइट, ये क्या था, AR AR² अप टू AR⁴n-1 इज इक्वल टू P। ध्यान से देखना ना, ये जो आपके पास आ रहा है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ A, सभी में A है तो A⁴n लिख सकता हूँ?
एंड सी आर का पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n-1 इज इक्वल टू पी, राइट। ये आ गया a⁴n r⁴n n-1/2, राइट, इज इक्वल टू पी। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, a², राइट, इनटू r का पावर n-1 इज इक्वल टू पी। लिख सकता हूँ इसे, या a² r, सर हाँ सर पी स्क्वायर ना। हाँ, a² r⁴n-1 का पावर n इज इक्वल टू p², एंड व्हाट इज दिस वैल्यू, ab⁴n इज इक्वल टू p²। सर सर आपको n इंटू n-1/2 कैसा है? सम बेटा 1 + अच्छा अच्छा 2 up to n-1 का सम n-1 into n/2 आएगा, उसी को लिखा। तो सर मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। हाँ, ऐसे ही किया था, वेरी गुड। सर मैं बाय 2 भूल गया। क्या हो रहा है तेरे साथ, हैं? तो कल आ जा सेंटर पे, थोड़ी पिटाई चाहिए तेरे को, ठीक होगा सब। मैंने फर्स्ट मेथड से किया। सर, आप एक सेकंड मेथड बता सकते हैं? मैंने लास्ट अपने अमोल, यस सर। क्या ये हुआ बेटा, क्या सर? ये हुआ, ये सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया सर, मैं कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे ही कर रहा था अपना कुछ। ओके ओके, अरे आराम से कर सकता है तू, ये होने चाहिए थे तेरे से। कि माया, इट्स ओके, अनुष्का, ओके, यस सर। चल सी नेक्स्ट। हाँ, अब इसको मैं थोड़ा सा और एक और टफनेस लाऊं इसमें, या इसी लेवल पे बताऊं, क्या बोलते हैं? टफनेस लेके आओ। थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाऊं? टफ कर लीजिए, बोर हो रहा है। अरे वाह, सही बात है। तो चलिए बोरियत खत्म करते हैं टफनेस से, लेकिन इतना टफ ना हो जाए कि गड़बड़ हो जाए। ध्यान से देखना, हाँ। सम ऑफ n terms of GP is S, ना, ये S गिवन है, राइट। Their product is P, वो P गिवन है। सर प्रोडक्ट के लिए कोई फॉर्मूला होता है? नहीं बेटा, वही जो अभी निकाला ना प्रोडक्ट का, वैसे ही कुछ निकालना होगा। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल is R, capital R, right? Then find S by R to the power n upon P square की वैल्यू। ये काफी क्वेश्चन में है, हाँ बेटा। सर ये जो सम ऑफ द रेसिप्रोकल है, पहले सम निकाल के फिर रेसिप्रोकल किया या नहीं, सबको रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का करके सम फिर निकाल, सम निकाल? रेसिप्रोकल करके फिर सम निकालना है, ठीक है। ओके पहले सर। रेसिप्रोकल करना है, फिर सम निकालना है, ओके। राइट, ओके एवरीवन। तो यस सर। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 4 मिनट्स, ओके, स्टार्ट।
डन सर। सर आंसर चेक करते हैं। वेरी गुड अमृतराज, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। मैं स्टार्ट करूं क्या? कर दो। सर एक सेकंड, एक सेकंड। Okay. मैं स्टार्ट कर लूं? सर आंसर नंबर में है। नंबर में है बेटा, सर एक सेकंड, एक सेकंड, हो गया जस्ट। नंबर में आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरी गुड यस। मैं स्टार्ट करूं? अमृतराज क्या किया आपने, बताया बेटा कैसे किया? सर मैंने पहले एस अपॉन आर को लिखा, हम्म। तो एस हुआ ए प्लस ए आर ऑल द वे टिल ए आर टू द पावर एन माइनस वन। गुड, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अपॉन और फिर आर जो है वो है 1/a+1/ar² + 1/ar³ ऑल द वे टू पावर एन माइनस वन। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, यही था। फिर मैंने जो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें ए आर टू द पावर एन माइनस वन को कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया। ना हिंट काफी है ना, अमृतराज ने तो और भी आगे आपको बता दिया है ना। मैक्सिमम इसमें मेरे को लगता है मैक्सिमम 1 मिनट में तो सबके सबके सॉल्व हो जाने चाहिए। राइट, एवरीवन टेक योर टाइम। एस बाई आर किया, राइट, ये इस अभी बाई हो आर गया को सर, भेज दिया केवल मैंने आपको थोड़ा सा आंसर। प्यार से सॉल्व करो बस। सर ये और मैंने इससे आपका पहले आंसर वाले भेज क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट्स द रीजन आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन। दिया मैंने। वेरी गुड अभय, वेरी गुड बेटा। यस वेरी गुड। तुषार एक बार फिर से चेक करो बेटा। अनुष्का, झील, अमोघ, कैमरा सर ऑफ ढूंढ नहीं, कैमरा ऑफ नहीं, सर ढूंढना क्या है? कैमरा ऑफ नहीं बेटा। तुम्हें ढूंढना क्या है? सर ढूंढना क्या है? बस, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तुम्हें पता ही नहीं, कहाँ दिमाग है? सर नहीं पता था वो, सर आप नीचे कर दिए थे ना तो वो दिखा नहीं रहा था। भाई आर ये रीजन है अपॉन पी स्क्वायर। पी स्क्वायर अभी ओके। क्वेश्चन में आपने निकाला था, पी स्क्वायर होता है ए बी टू द पावर एन, या फिर जो ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट है वो, राइट, वही दिखता लिखा हुआ है। अब देखते हैं। ओके सी, तो
वेरी गुड। अब यहां से जो ऊपर गिवन है उसे सॉल्व मत करो, जैसे है वैसे ही रहने दो, राइट। नीचे अगर आपने एलसीएम ले लिया होता, यहाँ पर एलसीएम ले लिया होता, राइट, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, राइट। तो फर्स्ट वाले में आपको आता आर टू द पावर एन माइनस वन प्लस आर टू द पावर एन माइनस टू, n minus 2 all the way to the r to the power 0 या 1। ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एक्चुअली सर मैंने इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज किया था। नहीं पड़ेगा बेटा। देखो तो ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर ये जो हमारे पास था, राइट, अपने आप नंबर आ जाता, एंड ऊपर और ये दोनों नंबर हमारे सेम हो गए हैं, नहीं? वो भी है सर। या ठीक। आप अगर लेना चाह रहे हो तो ले लो, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आपको जैसे कंफर्टेबल हो। मैंने पहले भी बोला ना, मैथमेटिक्स है, जो आपको कंफर्टेबिलिटी दे रहा है वो सबसे प्यारा मेथड होता है, राइट। अगर आपने पूरे के पूरे नंबर को नीचे ये वाले में पूरे नंबर को भी एलसीएम ले लिया तो वही बात होनी है। ये पूरे नंबर को हमने पहले ही देख के रखा था, राइट। ए टू द पावर एन चला गया था, और आर टू द पावर वन प्लस टू अप टू एन माइनस वन चला गया था। जस्ट अभी सॉल्व किया था ना हमने ये क्वेश्चन, राइट। क्या ये सही है? इज तब दिस आप सर आप ए आर एन ए आर रेस पर एन माइनस वन का डिनोमिनेटर कॉमन लेके भी जा सकते हैं। इसको एकदम जो पूरी तरह से सॉल्व करके दिखाता हूँ, सब ध्यान से देखना ना। इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाता तो क्या आता है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यही फॉर्मूला बनता, राइट। सेकेंड वाले में क्या बनता, वन बाई ए वन बाई आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन बाई आर माइनस वन, यही बनता। हाँ सर। क्या ये सबको क्लियर है? फॉर्मूला लगाया जो सम का फॉर्मूला था, राइट। अगर मैं इसको रीराइट कर दूं तो अपने आप ये दिखाई, ए ऊपर चला गया तो ये ए स्क्वायर हो गया, आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ये रहा, अपॉन में ये आया वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, और आर टू द पावर एन माइनस वन ऊपर चला गया, राइट, जो भी हमारे पास कैंसिल हो गया। तो आपके पास आया ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस वन, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, राइट, माइनस माइनस प्लस हो गया, इतना बच गया। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज नथिंग बट पी स्क्वायर। क्या, राइट, इसी का पावर एन कर दूंगा तो पी स्क्वायर आ गया, तो पावर एन के लिए अपने आप चला गया। इज दिस ओके? तो दो तीन तरीके थे आपको सॉल्व करने के, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? समझ आया सभी को? आवाज नहीं आ रही क्या? समझ आया सभी को? हाँ तुषार, सर समझ आया। यस सर। यस सर। Yes, sir. हिमाया, ओके एवरीवन, राइट। अब इसी के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, राइट। S is equals to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square up to 1 by 2 to the power n minus 1, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू S है, राइट। फाइंड 1 plus 2 square up to 2 to the power n minus 1 in terms of S। S के टर्म्स में इसकी वैल्यू निकालनी। जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट किया हूं, अब आपको उस ट्विस्ट से बचना है बस।
पावर्स पे कंसंट्रेट करना है, राइट। अभी जो ऊपर वाले क्वेश्चन पे किया था वही आपको हिंट है। हाँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। हाँ सर, हो गया सर। मैं आंसर भेजूं? एक प्लीज भेजें। जितने एंजाइटी वाली ये जगह है सबको हम लोग को खत्म करना है, राइट। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे। वेरी गुड। तुषार, राइट डाउन द आंसर। अनुष्का, सर सॉरी सर, गलत लिख दिया। जल्दी चेक करो। ठीक है, से सो ये गिवन मेरे पास है एस। एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, पहले वो निकाल लेता हूँ, राइट। देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू टू टू पावर एन वाले केस में, राइट। फर्स्ट टर्म मेरे पास है A1, 1 × 1 - 1/2 अपॉन 1 - r, यही है आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। तो ये आया S इज इक्वल्स टू 2 to the power n - 1 अपॉन 2 to the power n, और एक हाफ है जिसका 2 ऊपर चला गया, ये है 2 to the power n - 1 अपॉन 2 to the power n - 1। इज दिस ओके? इसे फर्स्ट नाम दे देता, जो S है उसकी वैल्यू हमने निकाला। क्या ये सही है सबको? यस सर। इसमें किसी को कंफ्यूजन या डाउट? इस एनीवन? नहीं, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया S, तो n एज्यूम कर लेता हूं 1 + 2 + 2 स्क्वायर अप टू 2 to the power n - 1। So this n is nothing but 2 to the power n - 1 upon 2 - 1, right? So यहाँ से मेरे पास है s into 2 to the power n - 1। तो n की वैल्यू आ रही है 2 to the power n - 1 into s। s into I guess सबने आंसर तो कुछ कुछ किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर सर आपको ऊपर s इक्वल्स टू 2n - 1/2n इंटू 2 कैसे आया? फॉर्मूला से बेटा, फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r जो है A1 है, कॉमन रेशियो r 1/2 है, यस राइट। सर। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला क्या था Sn का? A सर 1 - r⁴ अपॉन 1 - r, यही था फॉर्मूला। यस सर। r⁴n जैसा भी बोलो। तो अगर वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाता, इस पे लगाता, तो Sn के लिए आता 1 × 1 - 1/2 अपॉन 1 - r, राइट। तो क्या बन गया देखो, एलसीएम लूंगा तो 2 to the power n ओके सर। 1/2 इंटू 1/2 का 2 ऊपर, 2 कैंसिल किया तो 2 to the power n - 1/2 इज दिस ओके? सर यस सर। सर आप इसको दूसरे मतलब वापस आप 2 raised to the power n - 1 को कॉमन डिनोमिनेटर लेके फिर एकदम ऊपर दिखाता हूँ, आपका 1 + 2 + एकदम आसानी से आएगा, दिखाता वही हूँ। आ जाता है सर हाँ, वापस। दिखा रहा हूँ, सेकंड मेथड वही रखा था मैंने। देखो s मेरे पास क्या गिवन है, 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर अपॉन 1/2 ये गिवन है। मुझे निकालना n था, n क्या है मेरे पास, 1 + 2 + 2 स्क्वायर। तो कितना सिंपल होगा ये देखना, आपको हंसी आएगी।
क्या क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, राइट। ये जो s है उसे मैं रीराइट कर रहा हूँ, क्या मैंने एलसीएम लिया, हाईएस्ट पावर क्या जा रहा, हाईएस्ट नंबर क्या है इसका, रेस्ट पर n minus 1 2 raised to power n minus 1। पावर n-1। अगर मैंने तो लिया तो मैंने इस तरह से किया। 2 raised to power n-1, उसके बाद आएगा 2 raised to power n-2, फिर 2 raised to power n-3, करते करते लास्ट में क्या आएगा, 1। 1। ये यही आ गया जो n था, तो s इज इक्वल टू n अपॉन 2 raised to power n-1। फिर मैंने ऐसे ही किया था। वेरी गुड बेटा, जैसे भी आप दोनों में से दोनों मेथड है आपके पास, दोनों कंफर्टेबल। इज दिस ओके, क्या सही है, हाँ सर सही है। यस सर। राइट। तो थोड़े से चेंजेस लाने हैं, सम रेसिप्रोकल ये सब जो थोड़ी गंदगी सी लगती है ना, उसमें थोड़े आपको चेंजेस लाने हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। कितने लोगों का सही था, राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। ओके, ओके नाउ, यस। अब सम अप टू इन्फिनाइट वाले भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। अगर मैं ये बोलूं कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू इंफिनिटी जा रहा है, उसका सम जीपी में, राइट, जीपी है a1 a2 a3, इसका सम 3 है, एंड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी 3 है, राइट। फाइंड जीपी, राइट, जीपी क्या होगा ये आपको बताना है, राइट, व्हाट इज दिस जीपी। राइट, ओके, क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को, राइट। A1 A2 A3 मतलब A1 A2 A3 नंबर जीपी के सीरीज दिए हुए हैं, ओ जीपी के मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म को लिखने का तरीका है A1 A2 A3, हाँ, वी आर राइटिंग इन दैट वे। अमोघ ये क्वेश्चन होना चाहिए इस बार। यस सर। ओके, चलो आराम से, टेक योर टाइम, ये अच्छा क्वेश्चन है, सो टेक योर टाइम। सर मतलब जीपी का सीक्वेंस लिखना है। हाँ, अच्छा। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो आ जाए और फर्स्ट टर्म आ जाए तो अपने आप काम बन जाएगा, दोनों चीजें अपने आप हो जाएगी। बस पेशेंस, पेशेंस के अलावा कुछ भी नहीं। ये अधिक सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो आप लोग इतने अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं ये अधिक सिंपल है, ये अधिक आराम से आपको जाएगा। तो फाइंड जीपी, हम्म, फाइंड जीपी मतलब ढूंढना क्या है?
अब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो आ रहे हैं ना, वो Okay. वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड अभिजय। आंसर और आना चाहिए जल्दी। मैं स्टार्ट करूं क्या? संजय। सर 2 ओके ओके, टेक योर टाइम। वेरी गुड। ए और आर की वैल्यू चाहिए। प्रसम, वेरी गुड, हीरोइक एंट्री। ये देख, ये गिवन है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, राइट, अप टू इन्फिनाइट इज 3, एंड सेकेंड वन इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 अप टू इन्फिनिटी इज 3, दोनों वैल्यू 3 गिवन, राइट। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगाऊं तो फर्स्ट वाले में आएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज 3, एंड सेकेंड वाले में ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, दिस इज अगेन ट्रू, राइट। आई हैव टू सॉल्व बोथ दिस, यही तो क्वेश्चन है, कैसे करूं? तो अगर मैं फर्स्ट वाले को स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3, राइट। ए स्क्वायर की वैल्यू 9, 1 माइनस आर द होल स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर की वैल्यू 3, 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर 1 माइनस आर ब्रेक किया, 3 3 9, 1 माइनस आर कैंसल आउट, एंड ये बच गया 1 प्लस आर। आर इज नॉट इक्वल टू 1, राइट, नहीं तो इन्फिनिट तक जाएगा ही नहीं, राइट। 3 माइनस 3r इज इक्वल टू 1 प्लस आर, राइट, आर इज इक्वल टू 2/3। ये देखो, आर की वैल्यू 2/3 रखने से ए की आर वैल्यू 2/3 नहीं होगा सर, सर यार 2/3 छोड़ो, आर आर 2/4 या 1/2 होता है। 1/2 है भाई। 1/2 होएगा सर, 1/2 आ रहा है, हाँ, प्रिंटिंग में, So 1/2. राइट। तो 1/2 ये आ गया, तो 1/2 मैंने रख दिया, तो क्या आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, राइट। जल्दी से लिख लो इसे, सिंपल क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, नहीं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन।
सर मैंने ए को गलती से 2 ले ली। सर डन। वेरी गुड। आया, सबको समझ में आया? ये कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। राइट। सो जीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट, या जीपी के इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, केवल वो इक्वेशन को सॉल्व करने की बात होती है, राइट। अगर इक्वेशन को सॉल्व करने में हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, तो इतने बड़े क्वेश्चंस हमारे पास नहीं रहेंगे, राइट। बड़े आराम से वी आर एबल टू फाइंड ऑल द, राइट, जो भी वैल्यूज है वो पूरे हमारे निकल के आ जाएंगे, राइट। तो सी, सर आप इसको वापस से समझा सकते हैं क्या? मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। ये देखो बेटा, मैंने फर्स्ट ये लिया, इसकी वैल्यू लिखी, सेकंड ये इसकी वैल्यू लिखी, a अपॉन 1 माइनस आर 3 है, एंड सेकंड वाले के लिए हमने लिखा a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, वो भी 3 है, राइट। फर्स्ट जो इक्वेशन था उसको स्क्वायर कर दिया तो ये मिला मेरे को, नहीं, एंड दोनों से a स्क्वायर की वैल्यू को मैंने इक्वेट कर दिया, 1 माइनस आर दोनों से कैंसिल हो गए, राइट। आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू एक इक्वेशन में जैसे पुट किया, मेरे को दूसरी वाले वैल्यूज मिल गई जो ए की वैल्यूज थी, ठीक है। यस सर। कंफ्यूजन, डाउट? ठीक है ना? यस सर। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। सो बहुत ही सिंपल एक वेरिएशन होता है इसमें, राइट। एंड उसी वेरिएशन को थोड़े से आप प्रैक्टिस पे रहो तो ये सिंपल क्वेश्चन बोले जाएंगे एंड डुएबल, राइट। तो एपी एंड जीपी, ये दो जो अलग अलग सीरीज होते हैं, उस पर मैंने काम करके आपको दिखाया है कि कैसे वर्किंग हो जाती है, राइट। इन पे क्वेश्चन के वेरिएशन बहुत सारे हो सकते हैं, राइट, बट a is equals to 1 plus सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। up to infinity, b is equal to 1 plus y square up to infinity, c is equal to 1 plus z square up to infinity, right. Find value of 1 upon 1 minus a plus 1 upon 1 minus b plus 1 upon 1 minus c in terms of x, y, z. x, y, z के टर्म्स में आपको वैल्यू बताना, राइट। जल्दी से देखो तो, कांस्टेंट में आएगा। रकम माइक में। कांस्टेंट नहीं आएगा बेटा, एक्स वाई जेड के टर्म्स में आएगा। ओके। बट वेरी गुड, आज के काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अच्छे मैंने दिया, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा इंप्रेस किया है, वेरी गुड। वेरी गुड जयेश। कल मैं आप लोगों के लिए ग्रुप बना दे रहा हूँ, हाँ, ठीक है। कल मैं आप लोगों के, पता सर, मैंने एक्चुअली मैं पर्पल कॉमेट के लिए रजिस्टर नहीं कर पाया था, मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ पर था ही नहीं। कोई नहीं बेटा, अभी करवा दूंगा। तो कल मैं ग्रुप बनाऊंगा तो सभी के ग्रुप में अलग अलग से मैं नाम दे दूंगा, सर बट आप तो वेबसाइट पे जाके कैसे रजिस्टर करते हैं, मतलब मैं आज ही असल में वापस आया। आपको कुछ नहीं करना, मैं कर दूंगा सब कुछ, आपको बता दूंगा कौन सा सर ग्रुप। आपको रजिस्टर करना है क्या? हमको सिर्फ वो
मैं सब कुछ आप लोगों के बिहाफ पर कल करवा दूंगा, कल ऑफिस में बैठूंगा तो कल सब कुछ कर दूंगा। हाँ, नो वरी। ठीक है ठीक है, सर। सबको ग्रुप का नाम वगैरह बता दूंगा। 2 से 11 अप्रैल के बीच में हम लोग को एग्जाम देना होता है। तो एक संडे का डेट मैं ले लूंगा, उस संडे का आप लोगों को बता दूंगा कौन सा डेट है। ठीक है, तो सर सब हम जो भी ग्रुप वाले एक साथ बैठ के करेंगे। एक साथ में आप लोगों को बैठना होगा, राइट। और 6 6 6 ये रहेंगे हमारे ना, 6 6 हाँ 6 की ग्रुप रहती है। हाँ, तो एक अच्छा सा ग्रुप बना के ट्राई करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी हम लोग पहले बना लेंगे उस ग्रुप में, कैसे काम करना है, क्या रहेगा, एंड ऑब्वियसली अपना बेस्ट देंगे, राइट। नेक्स्ट वीक जो हम लोगों का रहेगा उसमें हम लोग पर्पल कमिट का मैं पेपर आप लोगों को दूंगा, उसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 साल के पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलेगा ना सबको, कंफर्टेबल? हाँ सर चलेगा सर। ठीक है, तो 2 इयर्स के पेपर रहेंगे जिसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, राइट। डन यस डन सर। everyone? सर सर एक मिनट। वेरी गुड। आंसर अलग अलग आ रहे हैं सबके, चलो देखते हैं, टेक योर टाइम। सर बोलिए। फॉर एग्जाम्पल कभी हम डाउट ऑनलाइन नहीं क्लियर कर पा रहे तो हम किस दिन आए आईटीएन सबके सेंटर में आपके साथ फिजिकली क्लियर कर सकते हैं? एक बार नेहरू सेंटर पे पूछ लेना, वो बता देंगे तुम्हें किस किस दिन मैं वहां पर हूँ, आप आ सकते हो। राहुल सर से मैं पूछ लूंगा। खारगर वाले खारगर सेंटर पे एक बार पूछ लेना, आई बी देयर। असल में मैं रहता नेरुल में हूँ ना, इसलिए मैं नेरुल सेंटर। कुछ लोग खारगर के भी यहाँ हैं, उनके लिए बोला। वेरी गुड अमृतराज, पुरंजय, वेरी गुड। अरे आंसर सबको लिखना है। विजय आंसर लिख जल्दी। प्रसम, जील, तुषार, अमोघ, किमाया, एक पे अटका हूँ मैं, उसके आगे नहीं जा पा रहा। अनुष्का। अनुष्का फास्ट बेटा, भेजा मैंने। भेज दिया। अरे वाह, हाँ वेरी गुड। किमाया ट्राई बेटा। मैं लिखूं, मैं स्टार्ट करूं? ओके, अमोघ यस सर। आंसर 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 लिखो जल्दी। हाँ सर, सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वेरी गुड प्रसम। सी, a is given, तो a is nothing but a is equal to 1 upon 1 minus x. Is this okay? a upon 1 minus r फॉर्मूला लगाया, r तो मेरा x है और a फर्स्ट टर्म मेरा 1 है, 1 upon 1 minus x. Is this okay? ये क्या सबको क्लियर है? ये सबने लिखा था, यस सर। राइट। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। b की वैल्यू आई 1 upon 1 minus i, c की वैल्यू आई 1 upon 1 minus। मैंने जानबूझ के क्या किया, मैंने रिवर्स करके ऐसा दे दिया कि थोड़े से आपको केवल कैलकुलेशन में दिक्कत जाए, 1 upon 1 minus, राइट। कई तरीके से आप काम कर सकते हो। एक थॉट प्रोसेस तो यही हो सकता है कि सर क्यों ना मैं पहले से ही 1 minus a ले लूँ, तो 1 minus a लूंगा तो वैसे ही ये भी जाएगा,
राइट। 1 माइनस ए पर ये आ गया 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 कैंसल, दिस इज माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। क्या ये क्लियर है? यस सर। ये सभी को क्लियर है? तो इसका 1 अपॉन हो गया x माइनस 1 अपॉन x। वेरी गुड। तो इसका 1 अपॉन अगर मैंने ले लिया तो दिस इज x माइनस 1 अपॉन एक्स या 1 माइनस 1 बाई एक्स, जैसे भी आप, Yeah. राइट। सिमिलरली दोनों का, अब इसके आगे ना सबको सॉल्व नहीं करना होता, इसके आगे मैं बोलूंगा ये 1 अपॉन 1 बाई वाई हो गया और थर्ड वाला आ गया 1 अपॉन z, राइट। तीनों को ऐड करूंगा 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1। सर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, माइनस 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 लिखा। अरे एक ही बात है रे, तो यस सर, सेम मेरा भी यही है। फर्क क्या पड़ेगा, माइनस एक एक को दे दिया या समथिंग, राइट। ठीक है ना? सो Yeah. नेक्स्ट, यस सर। ठीक है ना? तो ये जीपी को मैंने इसलिए करवाया कि जीपी के क्वेश्चन मतलब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं ना, एपी और जीपी वाले पूछे जाते हैं, एपी वाले हो जाते हैं, जीपी वाले में ना थोड़ा पावर वगैरह के कारण दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने आज पूरा टाइम लिया, मैं बोला कि आराम से हम लोग जीपी जीपी करते हैं, राइट, जिसमें एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओ। हाँ, नेक्स्ट वीक के लिए मैं आप लोगों को 2 पेपर भेजूंगा, केवल एक चीज आप लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा, वो पेपर 2 ही पेपर दे रहा हूँ, 2 पेपर आपको पूरी तरह से अटेम्प्ट कर लेने हैं। क्या हो जाएगा? यस सर। हाँ सर आप आज इसके लिए Yes, कुछ sir. भेजोगे प्रैक्टिस के लिए? मैं इसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके प्रैक्टिस तो करनी ही है। मैं पर्पल कमिट के क्वेश्चन आप लोगों को भेज दे रहा हूं, आप लोग उसको अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे ओके सर। कैसे? ना। हो जाएगा? कितने कितने हाँ पेपर सर। बताएं? कितना, 2 या 2 से ऊपर भी दे सकता हूँ? सर 2 से ऊपर भी दे दोगे तो चलेगा, छुट्टियाँ ही है। अच्छा, वेरी गुड यार। कितने? सर 3? मेरा छुट्टी नहीं है। 3 पेपर कर दूं या 2? सब लोग लिख दो, चैट में लिखो, चैट में लिखो, देखो किसका कितना आता है। अरे वाह, देखो मैं नंबर पढ़ देता सर एक पेपर में कितना क्वेश्चन होगा? हूँ। 20 ओनली, ओनली 20। 20? अच्छा। पर जितने सालों से कंपटीशन हो रहा है उतने सालों तक के पेपर्स मिल गए तो मैं आप लोगों को दोनों काम करता हूँ, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, जस्ट वेट ना। मैं सर ग्रुप एक दिन में एक पेपर करेंगे तो चलेगा ना? चलेगा बेटा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन हम लोग करके जाएंगे ना, मैं पहले बता देता हूँ कौन कौन से करने हैं ना, हाँ सर। नहीं तो मतलब, नहीं तो हम लोग को डिस्कशन में दिक्कत जाएगी ना। लिख लें सभी लोग, राइट। आपको जो पेपर करने हैं, दो दो हैं, उसमें गलती से वो मत कर लेना आपको, सीनियर वाले का। हाँ, आपको जूनियर वाले पेपर जो हैं वो करने हैं, वो है 2023, राइट। सर हाँ, जो MS लिखा है कि HS लिखा है? मिडिल स्कूल हुआ MS, हाई स्कूल हुआ HS। तो सर हम किस में बिलोंग, हाई स्कूल ना? हाई स्कूल 9 10 जो होंगे, मतलब वो हाई स्कूल का एक बार मैंने वो भी भेजा हुआ है आपको पूरा का पूरा। हाँ हाँ सर। सर तो हम लोग HS करेंगे। HS। हाई स्कूल का रहेगा और एक मिडिल स्कूल का रहेगा। हाँ, तो जो ग्रुप जो है दोनों के लिए अलग अलग ये रहेंगे, ठीक है। ठीक है ना। यस सर। उसका आप लोगों को भेजा था सर एक ग्रुप में कितने मेंबर होंगे? मैक्सिमम 6। सर ओके उससे सर। ज्यादा नहीं हो सकते? नहीं बेटा, कम जरूर हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते ना, तो मैक्सिमम 6 रहेगा, ओके सर। ठीक है ना। हाँ तो सर रजिस्ट्रेशन आप हमारे ओर से कर दोगे ना? हाँ, मैं रजिस्ट्रेशन आप लोगों की तरफ से करूंगा। और सर डिटेल्स क्या भेजना है? कोई डिटेल नहीं है ना, मैं आप लोग को बता दूंगा किसका किसका है, बाद में मैं डिटेल आप लोगों का जो जो चाहिए होगा सर वहां, आपने जो लिखा था ग्रुप पे टीम नेम क्या लिखना है, तो वो वो मैं लिख दूंगा बेटा। हाँ, ठीक मैं है। वो भर के पूरा मैं कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो कल ये पूरा करके आपकी टीम बना के मैं आप लोगों को कल ही इन्फॉर्म कर दूंगा
मैंने ईयर यहाँ पर लिख दिया, ये 3 साल के पहले आप करोगे, एंड उसके बाद आपको लगता है थोड़ा टाइम मिल पा रहा है ना, तो पीछे वाले क्वेश्चंस भी आप कर सकते ठीक हो है सर। ना। बट ये 3 साल का फर्स्ट जो लेक्चर होगा हम लोगों का, मैं कोशिश करूंगा कि आपका लेक्चर वेडनेसडे में किसी को कोई दिक्कत नहीं जाएगी। नो सर। वेडनेसडे इज नो ओके, सर, नहीं नो सर, प्रॉब्लम। कोई सर दिक्कत थर्सडे नहीं को है रख सर। सकते हैं। वेडनेसडे इज ओके, नो सर प्रॉब्लम थर्सडे को रख सकते वेडनेसडे नो प्रॉब्लम, फिर थर्सडे क्यों बात कर रहा है? हैं। ओके सर, चलेगा। ठीक है ना। तो एक ठीक है पहले सर। में यस सर। हाँ, तो वेडनेसडे को पहले से हम लोग ये 3 पेपर डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, फिर अगर हम लोगों का अच्छा जैसा रहता है देखते हैं, तो फिर आगे के लिए भी हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। बाय एवरीवन, मैं इसका रिकॉर्डिंग भी आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है। बाय। थैंक यू सर। ओके सर, बाय बाय सर। सर।